So I hope every one of you can give your 30 minutes to me, right? So before starting that, just to warm up the mood, just to warm up the mood, I'd like to play a little game. मैं एक छोटी सी गेम खेलना चाहूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम उस गेम पे जाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि टेल मी इन द चैट बॉक्स, टेल मी व्हाट गोज इन द माइंड during these times, because we are dealing with a situation here, and the situation is that we are very uncertain in exams. बहुत uncertain होता है एग्जाम्स के टाइम पे. So what goes in the mind में चलता क्या है? In one word or one line, if you can describe your emotions, your feelings, chat box पे, how do you feel these days? Let me see your response, everyone. Yes, please use the chat box. Tell me what goes in the mind during these days. Complete my syllabus. Okay. Syllabus. Okay. Which question is coming in the exam? Okay. Good. Questions, syllabus. Anything else? Everything except study. All the irrelevant ideas. That's very honest. Well, well, I remember I have read exhaust. मजे आते हैं. Okay. Exhausted. Okay. Anything else? Yes. Everyone, please get involved. Get involved in the chat box. I want you to also write, everyone. What goes in the mind during these days? कल से करेंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, अभी सोते हैं. Just to score well, may I become the topper of the university? Okay. Yes, yes, yes. Anything else? कल से करेंगे. I think procrastination, uncertainty. Very good, very good. Uncertainty लगता है यही. That's very honest. पास हो जाए. हाँ, पास होने की दिक्कत है अभी तो. मैं just pass the exams at least. Over stress. Yes, yes, stress. Over stress. Too much, too much. टीचर्स ने कुछ कराया नहीं, और हमें भी पता नहीं कहाँ से आएगा एग्जाम में, है ना? 3-4 नोट्स हैं. चैट जीपीटी का सहारा है ना? एंड कईयों के पास और भी बहुत सारे सहारे के तरीके होते हैं, राइट? So yes, I think the most common thing is during these time exams, why we become fearful, डर क्यों लगता है, और ये अनसर्टेनिटी है ना? ये अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस, इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमें लगता है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कैसे होगा, स्ट्रेस महसूस हो रहा है, और साथ के साथ लग रहा है क्या, कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें माइंड में चल रही हैं ना. Good. Okay. Good. 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 So we are a participative audience. Nice. I hope you all can see my screen. आप सबको मेरी screen visible है. I hope so. So yes, this is the topic which we are going to discuss today, right? So real peace of mind. So all these discussions, they are based on the spiritual teachings from a very renowned spiritual teacher, that is Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Prabhupada. So who is the founder Acharya of an international society for Krishna consciousness. So all the teachings from Bhagavad Gita I have been learning, I have been observing, applying from this great spiritual teacher of mine, whom I'm learning. So these are the main summary of our today's discussion. आज की डिस्कशन के हमारे मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे? ये चार चीजों के ऊपर डिस्कशन करना. ठीक है, अब वो ये चार चीजें क्या हैं, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो. यानी हम कुछ इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं.
Okay, what happened? Something happened. Technical side. Okay, just a second. You can't see my screen now. आप लोग स्क्रीन नहीं देख पा रहे. Okay. ठीक है. Now you're able to see my screen, everyone. क्या आप से कुछ कंफर्मेशन दे सकते हैं आप लोग? All of you can see my screen now. Okay. Thank you. Thank you, Gordon Bro. Yes, I was saying here that this will be the summary of our today's discussion. Yes, so something related to life. See, it's not only about exam. What I am going to teach you today, it's not only about exam. It's about every stressful situation in the life. आपकी लाइफ में और भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी. एग्जाम तो बस एक उसका क्या है, सैंपल साइज है, छोटा सा सैंपल है. बट ऐसी सिचुएशंस जब आएंगी आपकी लाइफ में, उस सिचुएशंस में भी कैसे रियल पीस ऑफ माइंड को अचीव करके रखना है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, हम देखेंगे ये क्या है. और हम देखेंगे टू बी लिस्ट नाम की चीज क्या होती है. ठीक है, ये आज हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द रियलिटी ऑफ लाइफ. वेलकम टू द रियलिटी ऑफ लाइफ. एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ? रियलिटी है क्या? वी कैन एस्केप विद थिंग्स की मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आई विल ऑलवेज बी अ विनर. बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट. देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जो इसके बारे में कहा और सुना जा सकता है. बट एक चीज जो है ना, एक चीज तो हमेशा कही जा सकती है, एंड आवर स्क्रिप्चर्स आल्सो एम्फसाइज दिस पॉइंट. वो क्या है? दैट द ओनली सर्टेन थिंग इन द लाइफ इज अनसर्टेनिटी. तो एनी वन ऑफ यू प्लीज अनम्यूट एंड रीड दिस कोट. आप में से कोई भी अनम्यूट करके ये कोट पढ़िए प्लीज. लेट्स हियर सम वॉइस आल्सो. दैट विल बी गुड टू हियर. Yes, yes, please. Anyone would like to unmute and read this? Am I audible? Everyone, am I audible? Okay, yes. Ujjwal Bro, you are here. Ujjwal Bro, you would like to read this? जी प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. Uncertainty is certain, but fear and worry are optional. Okay, now involve yourself. Everyone, involve yourself. Use the chat box. What do you understand from this quote? What do you understand from this quote? Uncertainty is certain, but fear and worry are optional. Let's hear everyone's thoughts. Let's hear everyone's different ideas. तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताएं. What do you think? What do you understand from this quote? Uncertainty is certain, but fear and worry are optional. Those who want to unmute can also unmute by asking. I may take the names. Otherwise, you can use the chat box. But everyone should get involved. मैं चाहता हूँ आप सोचो. I don't want to just speak and communicate. I want you to discuss with me. I hope all of you are using chat box. Any one of you would like to unmute can also reply with audio also. Okay, let's see. First response has come. Life will not be stable all the time, but worrying and fearing from that is optional. Very good. Very good, Pragati. Yes. Stability. Yes, very good. Very good. Stability. Stability is not permanent. Very nice. Very nice. That yes, stability will be changing. Others also.
Okay, problems may come as they are sure to come, but it is up to us whether we want to worry and stress about it or work on it and handle it peacefully. Okay, yes, good. It's our choice whether to worry and have fear or to be happy. That means choice is there. That means we are not robots. ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ये डाल दिया गया. हमारे पास choice है. It means that it is for sure that at times we'll get uncertain of something, someone, our attitude towards that uncertainty matters, whether it's filled with fears and worries. Yes, our attitude. Attitude, yes, attitude matters. What attitude we have, what conception we have of the things. Life is like the graph of sine, ups and downs. Very nice analogy, so Shiva Pro. Very good. Sine wave, you all know sine wave. Sine wave कैसी होती है? जिनको मैथ्स याद नहीं है, जिनको मैथ्स नहीं पता. ओके, शेयर ऑफ हो गया. ओके ओके ओके. अदर्स ऑल्सो प्लीज कीप राइटिंग. मुझे आप लोगों के थॉट्स जानने हैं ताकि हम डिस्कस वही कर पाएंगे, इसी में से करेंगे. यस, तो ये साइन वेव का ना कुछ ग्राफ होता है, यानी ये ऐसे ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे. साइन, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी साइन वेव को हम क्या कहते हैं लाइफ के बारे में, कि लाइफ में उतार और चढ़ाव तो आएंगे. उज्जवल प्रभु, अनसर्टेनिटी इज इनएविटेबल बट चूजिंग फियर एंड पीस इज अप टू अस. यस, आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर. हम सबके लिए ये क्रिस्टल क्लियर मैसेज है, और ये हमने सुना भी हुआ है ना, ये हमने सुना भी है, ऐसा कुछ नया नहीं है. बट शायद ये चीज हमारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं एक डाउट की फॉर्म में है कि इस पे फेथ नहीं है ना, इस स्टेटमेंट पे फेथ नहीं आ रहा क्या, कि अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी. इट विल नॉट बी दैट एवरीथिंग विल बिकम स्टेबल इन लाइफ. अनसर्टेनिटी सिचुएशंस विल कम इन लाइफ. दे आर गोइंग टू कम. दे आर गोइंग टू बी देयर. बट यस, जो चीजें नहीं लिखी हैं आना, वो कौन सी है? फियर एंड वरी. Yes, uncertainty is natural part of life. We can't avoid it, but how we respond, it's our choice. We either live in fear and worry or face the unknown with courage, calmness, and trust in ourselves. Yes, such beautiful thoughts you have all shared. तो एक चीज तो हमें इस सेशन में शुरुआत में पहले समझनी है क्या, कि हम स्टूडेंट्स हैं सारे, ठीक है. तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीन पे लिखे ना, वो अपने पेन एंड कॉपी पे लिख सकते हैं, लेकिन जूम के स्क्रीन पे ना लिखे, ठीक है. एंड हम इस स्लाइड से क्या समझ रहे हैं, कि बहुत सिंपल सी चीज है. क्या सर, बहुत सिंपल सी चीज है कि हमारे पास चॉइस है. वी हैव अ चॉइस. देयर इज अ चॉइस. Fear and worry are not default emotions. For a student, it is very important to understand that fear and worry are optional. It's a choice. Whether we want to be fearful or we want to get worried and stressed, ये एक चॉइस है. लेकिन क्वेश्चन यही है कि चूज हम इसको कैसे अनडन कर पाए. कई बार आप इंटरनेट पे देखोगे, कई बार क्या होता है, हमारे सामने ना कभी ब्राउजर पे हम कुछ पेज पे सर्च कर रहे होते हैं और पॉपअप आ जाता है, और पॉपअप पे क्लिक हो जाता है, तो हम देखते हैं वो एड की तरफ चले जाते हैं, है ना. हम जब एड की तरफ चले जाते हैं, तो होता क्या है, कि जब हम किसी एड की तरफ चले जाएं, तो हमें लगता है हमें यहाँ तो जाना ही नहीं था, ये तुम गलत जगह आ गए. तो हमारे पास एक बैक जाने का बटन होता है, जिससे हम पिछले पेज पे वापस आ जाते हैं. अब क्वेश्चन यही है कि हम सबको पता है कि लाइफ की रियलिटी क्या है, कि अनसर्टेनिटी तो होगी, है ना. और हमें ये भी पता है कि ये मेरी ही चॉइस है कि मैं उस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करूंगा. मैं फियरफुल होना अवॉइड कर सकता हूँ, मैं वरीड रहना अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे कैसे अवॉइड करूंगा, ये अभी भी हमें थोड़ा सा डाउट रहता है. वो बैक आने का बटन हमारे पास कहाँ से मिलेगा हमें, वो कैसे वो करते हैं, इसकी ट्रेनिंग हमारे पास नहीं. एम आई राइट, यस और नॉट? ऐसा होता है या नहीं, कि वी most of the time we fail actually to to respond well in these stressful situations. We just go with the natural or default way, जैसे हम करते आए थे हम वैसे ही करते हैं.
जैसे बाकी लोग करते थे हम वैसे ही करते हैं। ऐसा होता है या नहीं? कैन यू रिस्पॉन्ड इन द चैट, यस, नो? यस, ऑलवेज, वेरी ऑनेस्ट, यस यस, ओके, यस, थैंक यू फॉर योर responses, everyone. Nice to see that students are involving. Very good, very good. Yes, it's a truth. It's a truth that हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है ना? मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। इस चीज को ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना। इस वर्ल्ड को देखने के ना दो तरीके हैं। इस वर्ल्ड को देखने के दो तरीके। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूँ, ये दो वर्ड्स लिख रहा हूँ। मैंने कहा ना, चॉइस है हमारे पास। तो वर्ल्ड को देखने के दो तरीके हैं, हमारी लाइफ को देखने के दो तरीके हैं हमारे पास। लेफ्ट में क्या लिखा है बताओ, अनम्यूट करके, क्या लिखा है लेफ्ट में स्क्रीन पे अगर दिख रहा है तो? क्या दिख रहा है बताओ? होटल। होटल, है ना? होटल, यस। होटल आज के टाइम पे हम रेस्टोरेंट ज्यादा यूज करते हैं, बट हम होटल यूज करते हैं ना। बट क्या है होटल वर्ल्ड व्यू? होटल वर्ल्ड व्यू क्या है कि जब हम किसी होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें सब कुछ क्या किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी सर्व। और क्या सर्व किया जाएगा हमें? क्या सर्व किया जाता है रेस्टोरेंट में? यू ऑल नो, आप लोग गए हो कभी? गए हो क्या? आई होप सो। व्हाट इज सर्व्ड एट द रेस्टोरेंट्स और hotels? You go for food, and food is served. Very good. Food is served. And which food is served? कौन सा फूड सर्व किया जाता है? जो हमने ऑर्डर किया हो। आप जो ऑर्डर करोगे वो सर्व किया जाएगा। आपको कुछ पीने के लिए चाहिए तो आपको पीने के लिए सर्व किया जाएगा, है ना? आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, वो सर्व किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए, या मैं कहूं मैनी लोगों के लिए, अराउंड, मोर देन, ग्रेटर देन, you know 99% people live with this idea of hotel worldview. उनकी लाइफ ऐसे चलती है होटल वर्ल्ड व्यू से। होटल वर्ल्ड व्यू क्या है? दे थिंक दैट एवरीथिंग विल बी सर्व्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डिजायर। उनकी इच्छा से उनकी लाइफ में चीजें होंगी, एंड दे एक्सपेक्ट दिस। They live with this expectations that everything will be, according to my plans, or everything will be, I will be getting what I desire. और हमारी कितनी सारी डिजायर्स हैं, है ना? So many desires, so many plans, ambitions, everything is there, and we want to achieve that, and we think life will be like hotel. But actually, the reality of life is not about hotel. Life is not like a hotel. Life is like a school. The school perspective of life is, एक स्कूल पर्सपेक्टिव वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि आज मुझे क्या मिलेगा, जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ या मैं जो सोच चाहता हूँ वो नहीं, बट मुझे लेसन्स मिलेंगे। आई विल गेट लेसन्स, आई विल गेट मेनी मेनी थिंग्स टू लर्न, एंड some things which may be happening to me, I may learn from them, or some things which I may not like those, still I may learn from them. स्कूल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें न सिखाने के लिए दी जाती है, चाहे वो हमें अच्छी लगे या ना लगे। ये एक सत्य है ना, ये एक सत्य है। स्कूल मीन्स जहाँ पे कुछ लर्निंग हो, एंड कुछ चीजें हमें जो पसंद आएंगी, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं आएंगी, और जो चीजें हमें पसंद नहीं भी आए, स्टिल हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लर्निंग के लिए है। यहाँ से शुरुआत होती है माय डियर फ्रेंड्स।
यहाँ से शुरुआत होती है एक एक ब्रॉड सोच की, एक विजडम वाले व्यक्ति की सोच की शुरुआत यहाँ से होती है, क्या कि लाइफ इज लाइक अ स्कूल, इट्स नॉट ए होटल। है ना? right now हम सब, many of you, if I speak honestly, I think many of us are, in our courses in university, because our education system is not, very much well versed। तो है क्या कि हम गलत कोर्स में आ गए हैं, जहाँ पे हम वर्ल्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते या नहीं दे सकते या नहीं दे पाएंगे। या तो कोर्स का कंटेंट ऐसा है जो हम पढ़ रहे हैं जो हमारी हेल्प नहीं करेगा कोई कंट्रीब्यूशन देने में, या उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसमें उस कोर्स के थ्रू हम शायद कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। और आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स, हम यूनिवर्सिटी में यही फील करते हैं। यही है या नहीं? इज इट लाइक दिस और नॉट? ऐसा ही है या कुछ डिफरेंट है? चैट पे बता सकते हैं आप लोग। इज इट लाइक दिस और इज इट डिफरेंट? Many things which we feel that might not be useful for us, it's why this is existing in syllabus, why I have to study this? No, it's questions mark. आप लोगों में से anyone you feel like this? Okay, some have responded, yes. So I expect those who have not responded that they are studying what they are meant to contribute in their area. तो आप लोग वही स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ओके। नहीं नहीं, सब लोग, बहुत लोग यस लिख रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ रहे हैं जहाँ जिनका हम कोई कंट्रीब्यूशन में यूज नहीं ला पाए। अब मैंने स्कूल के बारे में क्या बताया था, अब वो याद करो। जो मैंने स्कूल के बारे में बताया, स्कूल में दो तरह की चीजें हैं, है ना? देर आर गोइंग टू बी टू थिंग्स। वो क्या? एक तो वो जो चीजें हमें पसंद आएंगी स्कूल में, कोई सब्जेक्ट, कोई एक्टिविटी, कोई हमें ऐसी चीज पसंद आएगी जिसमें हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और स्कूल में कुछ ऐसी भी चीज होंगी जो कि हम हमें पसंद नहीं आएंगी, बट शायद जो हमें कंट्रीब्यूशन देने में लेटर ऑन हेल्प करता है। तो राइट नाउ हमें स्टडीज में यही समझना है क्या, इवन हम अभी कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि हमारे लिए इररिलेवेंट लग रहा है, या फिर जो कि क्या है, जो कि हमें वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन देने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस में, उस ड्यूटी को पूरा करने में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में लेटर ऑन कंट्रीब्यूशन देने में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बचपन में क्या बेचते थे? चाय। है ना? बचपन में चाय बेचते थे। एंड आज वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ऐसा नहीं है कि जब वो पॉलिटिक्स में ही कोई आता है तभी वो लेटर ऑन, अगर वो पॉलिटिशियन बनता है तो वो क्या कर पाएगा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा उसी एक्सपीरियंस के साथ? नहीं। इवन कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि डायरेक्टली हमारे कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है, वो स्टिल इस वर्ल्ड में कोई कंट्रीब्यूशन देने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो वो कैसे करेगा, वो हमें देखना है आगे। तो लेट्स गो अहेड। है ना? देखो, माइंड पीसफुल कब रह सकता है, हमें ये समझना है ना, कि हमारा माइंड पीसफुल कब रह सकता है, जब हमारे पास स्कूल वाला पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर। जब हम लाइफ को एक स्कूल की तरह लेके चलते हैं, तब हमारा माइंड पीसफुल रह सकता है। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी होगी या नहीं होगी, ये हमें पता है, अनसर्टेनिटी तो होगी। तो अब क्वेश्चन यही है, क्या अनसर्टेनिटी होते हुए पीसफुल रहना पॉसिबल है? हम देखते हैं। ठीक है? एंड बिलीव मी, ये माइंड है, माइंड इज एज स्ट्रॉन्ग एज विंड टू कंट्रोल। कृष्णा सेज इन भगवत गीता कि माइंड की पावर कितनी है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी आर्चरी से, मैं ये सबसे वर्ल्ड का एक्सपर्ट आर्चर हूं, मैं अपनी आर्चरी से मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ कृष्णा, लेकिन मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता कृष्णा। मैं हवा तक को कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड हवा को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है, आप देख सकते हो इस छोटे से वीडियो ग्राफिक में, है ना, कि हवा कितनी स्ट्रांग होती है। हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं। है ना?
लेकिन अर्जुन कहते हैं मैं हवा को भी कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता कृष्णा। माइंड को कंट्रोल करना सच में बहुत डिफिकल्ट है। तो कैसे रहेगा ऐसा माइंड पीसफुल? वेल, एक अनट्रेन्ड माइंड जो है वो नॉन पीसफुल होता है, लेकिन एक ट्रेन्ड माइंड पीसफुल हो सकता है। मैं एक स्टोरी से आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, एक स्टोरी से हम देखेंगे। तो ये एक स्टोरी है किंग की, एक राजा की, है ना। पुराने जमाने की स्टोरियां सारी किसकी होती थी? राजाओं महाराजाओं की होती थी, है ना। ओके, हमें बनना भी तो राजा जैसा है, वी वांट टू बिकम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। तो हुआ क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, सुनना आप लोग ध्यान से। तो ये जो किंग है, इस किंग ने एक बार इनवाइट किया सब लोगों को अपने टाउन में, अपने सिटी में सबको इनवाइट किया। क्या कि आई वांट कि जितने भी पेंटर्स और आर्टिस्ट हैं ना पूरे, आई वांट कि आप लोगों में से कोई भी अगर रियल पीस ऑफ माइंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो ना एक पेंटिंग में दिखा दो बना के। बड़ा इनोवेटिव सा चैलेंज है। आई थिंक इट्स वेरी इनोवेटिव कि पेंटिंग के थ्रू पीस को डिस्क्राइब करना। तो किंग ने ये बोला कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो सही पेंटिंग, जो सबसे बेस्ट पेंटिंग ला के देगा, उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा, उसे मैं माला माल कर दूंगा। तो सारे खुश हो गए कि चलो भाई, लगा देते हैं अपनी पूरी दिल से जान। तो सबने लगा दिया। तो पहली पेंटिंग ये है। कैसी है? पहले देख लो आप लोग भी। अच्छी पेंटिंग है? अच्छी लग रही है कि नहीं? पीसफुल है कि नहीं? देखो कितने अच्छे नेचर है, पानी है, आसमान भी नीला है ना। कितना अच्छा लगेगा, सोचो अगर हम ऐसी जगह पहुंच जाएं, अपने पैर हम पानी में डाल सकते हैं, घास पे बैठ सकते हैं। इज इट पीसफुल? यस, नो? व्हाट डू यू थिंक? इज इट पीसफुल और नॉट? इस पेंटिंग को डिजाइन किया इस भी आर्टिस्ट ने, अपीयर्स पीसफुल। यस, है ना, बहुत पीसफुल लगती है। आई ऑल्सो थिंक इट्स वेरी पीसफुल, है ना। तो किंग ने पेंटिंग को देख के फिर क्या किया? किंग ने कहा नो, दिस इज नॉट रियल, इट्स पीसफुल बट इट्स नॉट रियल। सारे लोग हैरान, इससे भी कोई बढ़िया पेंटिंग बना सकते हैं पीएल पीस को दिखाए। तो एक पेंटर और आया, उसने कहा मैं दिखाऊंगा रियल पीस वाली पेंटिंग। तो उसने ये पेंटिंग दिखाई, ये देखो, इट्स एन इवनिंग टाइम। ये देखो, इवनिंग, रात होने का समय है। ये लेक है, कितनी शांत है, ठंडी लेक कितनी शांत है। और ये घर कितना अच्छा है ना। मेनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग, इफ आई कुड हैव अ हाउस लाइक दिस एट द एज ऑफ अ लेक, कितना अच्छा होगा, है ना। ऐसा चमकता हुआ लाइटों वाला बढ़िया सा घर मेरा हो ना, शांत हो पहाड़ों के बीच में, है ना, कितना मजा आ जाएगा। तो पीसफुल, है ना। तो जब ये पेंटिंग को देखा सबने, सबने कहा कि क्या, ये तो जवाब, इसका तो कोई जवाब नहीं, ये तो पक्का रियल पीस को बताते। द किंग सेड नो, दिस इज ऑल्सो नॉट रियल पीस। एंड पीपल वर लाइक कि ये क्या हो रहा है, ये भी रियल पीस नहीं है। एंड किंग ने कहा लगता है कोई नहीं दिखा सकता। और फिर एक आर्टिस्ट आया, उसने एक पेंटिंग दिखाई, एंड किंग ने उसे सेलेक्ट किया कि हाँ ये सही। और वो पेंटिंग आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना इस पेंटिंग को। ये रही वो पेंटिंग, ये रही वो पेंटिंग। यस, किंग ने क्या किया? किंग ने कहा ये पेंटिंग जीत गई। यस, दिस इज द विनर, विनर विनर। यस, दिस पेंटिंग इज द विनर। बट सारे लोगों ने देखा, क्या इस पेंटिंग का पीस से कुछ लेना देना है? क्या इस पेंटिंग का पीस से कुछ लेना देना है? वाई? इज इट अ पेंटिंग ऑफ अ स्टॉर्म और पीस? ये तो तूफान दिखा रही है, इसमें तो बिजली कड़क रही है, इसमें तो क्या क्या नहीं हो रहा। अंधेरा होने वाला है, बिजली कड़कने वाली है, बिजली गिरने वाली है, पानी जोर जोर से बह रहा है। कहां से इस पे पीस है? वेयर इज द पीस? एवरीवन इज सर्चिंग। समहाउ और अदर ये पेंटिंग हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। कहाँ गई ये? आप लोगों को आई होप दिख रही है ये? हाँ, दिख रही है। तो इस पेंटिंग के अंदर पीस कहाँ है? वेल, ध्यान से देखो।
ये पोर्शन जब जूम आउट करते हैं ना हम, ये जहाँ पे मैंने किया है, तो हमें ये पेंटिंग में क्या दिख रहा है कि ये झरने के बीच में क्या है। किंग ने कहा इस झरने के बीच में ये जो है, ये एक नेस्ट है, ये घोंसला है। यहाँ पे एक चिड़िया है, यहाँ पे एक बर्ड है, एक बर्ड ने यहाँ नेस्ट बनाया हुआ है, और वो अपनी फैमिली के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वो यहाँ पे बैठी हुई है। द किंग सेड दिस इज रियल पीस। ये जो पहली की पेंटिंग्स दिखाई है ना सारी, जहाँ पे हम लेक के बगल में हैं, हम नेचर के पास हैं, these are not the part of reality of life. The reality of life is depicted in this painting because life is uncertain like storm. There are storms coming, there are unstable situations which will come in the life. But this bird is sitting happily with his family under this small shelter. And when this bird is having this peace अपने फैमिली के साथ, that is real peace. ये सच्चाई ये रियलिटी है। एंड हमारे साथ भी ऐसे ही है ना। गर्मियों का मौसम है, ऐसे ही कितना स्ट्रेस है, और इसके अलावा कॉलेज आना जाना, ट्रैवलिंग इज सच एन इशू। एंड हम देखते हैं क्या, ये सारे इश्यूज के बावजूद भी पीस ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। तो हमें इस बर्ड की तरह बनना है। रियलिटी हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें इस बर्ड की तरह ये सारी चीजों में होते हुए पीसफुल रहना, एब्जॉर्ब रहना, हमें ये सीखना है। अब क्वेश्चन है ये आएगा कैसे, रियल पीस मिलेगा कैसे। तो रियल पीस कैसे मिलेगा वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यस, गोवर्धन प्रो, इफ यू कैन रीड दिस, इफ यू कैन अनम्यूट एंड रीड It is दिस। a state of consciousness when we learn to take shelter of those principles in our lives, which can be taken away from us and which don't change. वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर हम समझ रहे हैं ना, इस चीज को अगर हम अपने माइंडसेट में फिट कर ले, मेरा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, मेरी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए कि मेरी लाइफ का गाइडिंग नॉर्थ स्टार क्या होना चाहिए। principles, not the things, not the ambitions. I should be guided with by the principles in my lives। और कैसे principles होने चाहिए, which can't be taken away, जिन प्रिंसिपल्स को मुझसे लिया नहीं जा सकता, जो कि मेरे स्वभाव के, जो कि मेरे इनहेरेंट रहे, और विच डोंट चेंज विथ टाइम। ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि समय के साथ ना बदलें, the unchanging principles which cannot be taken away from us। जब ये प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ का आधार होते हैं ना, जब हम स्कूल वर्ल्ड व्यू में पूरी दुनिया को देखते हैं कि पूरी दुनिया एक स्कूल की तरह है सिखाने के लिए, इट्स अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा, इट्स अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ गॉड टू टीच मी not to how to achieve those things, but to teach me the principles by which I have to live this life, and those principles which are eternal principles which cannot be taken away, then you can be peace। ये है वो रियल पीस ऑफ माइंड जो हम ढूंढ रहे हैं। ये प्रिंसिपल्स क्या है, अब हमें ये जानना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल्स क्या हैं जो कि हम उतार सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये प्रिंसिपल्स हमें कहाँ मिलेंगे, यही प्रिंसिपल्स जो हैं वो लाइफ मैनुअल में मिलते हैं। एक लाइफ को जीने के लिए एक मैनुअल है, और वो मैनुअल क्या है, वो मैनुअल है भगवत गीता। भगवत गीता में यही प्रिंसिपल्स की चर्चा है, इन्हीं प्रिंसिपल्स का डिस्कशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। आज मैं आपको स्टूडेंट लाइफ में वैसे 3 प्रिंसिपल्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके लाइफ में होने चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम्स, जो आपकी रियली में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप टोटल लाइफ के प्रिंसिपल्स जानना चाहते हैं ना, तो उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, भगवत गीता में मिलेगा, और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप में से, यस, यस, शिवा प्रभु, आप प्लीज इसको रीड कर दीजिएगा जो भी स्क्रीन पे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ये हैं 16.1।
16 चैप्टर के फर्स्ट वर्स. यस शिवा प्रभु, कैन यू रीड दिस? Universal principles. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, cultivation of spiritual knowledge, charity, self control, performance of sacrifice, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion of fault finding, compassion of all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, forgiveness, cleanliness, and freedom from envy and from the passion of for honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. यस, थैंक यू शिवा प्रभु. ये हैं लाइफ के वो सारे प्रिंसिपल्स. बहुत लंबी लिस्ट है ना, कितनी सारी चीजें हैं, कितनी कुछ है इसके अंदर. अगर आप देखोगे, ये वो सारी चीजें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल है या नहीं. ये अगर हमारे अंदर है ना प्रिंसिपल्स, या अगर हम इन प्रिंसिपल्स पे लाइफ में काम कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली में हम भगवत गीता के स्टूडेंट हैं. तो हम भगवत गीता को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मान लो, मतलब हम में से, आप सब में से बहुत लोग भगवत गीता पढ़ भी रहे हैं, पढ़ भी चुके हैं, या पढ़ रहे होंगे शायद, या पढ़ने का सोच रहे होंगे शायद. लेकिन अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद भी अगर आपको ये प्रिंसिपल्स नहीं पता, या ये प्रिंसिपल्स आपके जीवन का आधार नहीं है ना, तो अभी भगवत गीता में आपको अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा. The whole purpose of Bhagavad Gita is to help us develop these principles. हम सुनते हैं ये वर्ड, बहुत कॉमन वर्ड है क्या, भक्ति. भक्ति एक बहुत कॉमन वर्ड है. भक्ति है क्या? भक्ति है जो हमारे स्वभाव को बदले. भगवान के साथ हमारा कनेक्शन कैसे पता लगता है कि स्ट्रांग हो गया? हम मेडिटेशन करते हैं, इतने सारे योगा हम सीखते हैं. वर्ल्ड में इंडिया फेमस है योगा के लिए, है ना. यूएस भी इंडिया की योगा है. तो योगा है क्या? योगा इज कनेक्शन टू गॉड. अब भगवान के साथ हमारा कनेक्शन कैसे पता लगेगा? ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. एंड इसके ऊपर बहुत सारे फिलोसफर्स डिबेट करते हैं बहुत ज्यादा, कि कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मेरा कनेक्शन है भगवान के साथ. क्या सिर्फ भगवान के आगे सर झुकाने से, या भगवान की पूजा करने से, या पूजा पाठ करने से भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बनता है क्या? कैसे पता लगेगा? वो सिम्टम्स क्या हैं? वो सिम्टम्स क्या हैं? वो सिम्टम्स ये. So if someone is building their connection to God, then they will be developing these principles in their life. जैसे कि सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल आना शुरू हो जाता है अगर किसी का भगवान के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है. फ्रीडम फ्रॉम एंगर. ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने नहीं लिखे अपने मन से, कृष्णा ने खुद बताए हैं प्रिंसिपल्स. फ्रीडम फ्रॉम एंगर, राइट. देखो, स्टेडी डिटर्मिनेशन, cleanliness, forgiveness, freedom from envy, and from the passion of honor. Ki just because I want to get famous. These days, many people do many things on the internet just to become famous. Very nonsense things. But Krishna says कि ये principles जब हमारी लाइफ का आधार होते हैं ना, और हर सिचुएशन में जब हम स्कूल वर्ल्ड को जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया मुझे क्या सिखाने के लिए बनी है, पूरी दुनिया मुझे ये सिलेबस सिखाने के लिए बनी है. हमारी लाइफ का सिलेबस ये है एक्चुअली. हम सब ने देखा है हमारे एग्जाम का सिलेबस, सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है, बट पूरी लाइफ का सिलेबस क्या है? पूरी लाइफ का सिलेबस ये है. और अगर इस सिलेबस को एक लाइन में कहूँ तो क्या है? भगवान के साथ हमारा कनेक्शन. और भगवान के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा तो वाइस वर्सा ये प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में होंगे. ऐसा. तो यानी कि हमें बस ये सीखना है कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ अभी, स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूं आज के टॉपिक की, हम मैं एग्जाम की सिचुएशंस में हूँ, तो ये एग्जाम्स मुझे इनमें से कौन से प्रिंसिपल सिखाने वाले हैं, है ना. एग्जाम्स हमें कौन से प्रिंसिपल सिखाते हैं, हमें ये देखना है. ठीक है. तो हम देखने का प्रयास करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम एग्जाम के टाइम पे देख सकते हैं. हम सब ने टू डू लिस्ट बनाई होती है, या हमारी टू लिस्ट होती है डेली, या हम सोचते हैं
कुछ ना कुछ हम करेंगे आज, है ना। बट कृष्णा सेज कि टू डू लिस्ट बनाना या टू डू लिस्ट के बारे में सोचना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक टू बी लिस्ट होना। जैसे टू डू लिस्ट क्या होती है कि आज मैं एक्सरसाइज करूंगा, 15 मिनट्स एक्सरसाइज मुझे ऐड करनी है अपनी लाइफ में, तो मेरी लाइफ शायद बेटर होगी, मेरी बॉडी हेल्दी होगी, मेरा माइंड हेल्दी होगा। इट्स गुड, आपकी टू डू लिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टू डू लिस्ट बनाने के लिए लाइफ का वर्ल्ड व्यू नहीं है ना। द स्कूल वर्ल्ड व्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्कूल वर्ल्ड व्यू है, ओ, 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 जो स्कूल वर्ल्ड व्यू है, तो जो स्कूल वर्ल्ड व्यू है वो क्या है, वो टू डू लिस्ट के साथ एक चीज और सिखाने के लिए कि टू डू लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या होनी चाहिए, एक टू बी लिस्ट भी होनी चाहिए। यानी कि टू बी लिस्ट का मतलब क्या होता है, टू बी लिस्ट का मतलब होता है वो प्रिंसिपल्स होने चाहिए हमारी लाइफ में। क्या होने चाहिए, वो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आधार, कि मुझे ये प्रिंसिपल सीखना है। जैसे हम एक्सरसाइज सीखते हैं ना, कि मुझे एक्सरसाइज करनी है डेली थोड़ी 15 मिनट्स, so we should learn that life is also meant to learn to exercise patience, है ना। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स इटर्नल हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, है ना। और अगर हमें इस लाइफ में ये सीख लिए अच्छे से प्रिंसिपल, तो नेक्स्ट लाइफ हमें शायद मटेरियल बॉडी में भी लेनी पड़ेगी, ऐसा। आंसरिंग ईमेल्स हो सकता है, अगर कोई करता है कि जॉब कर रहा है तो उसको आंसर करना चाहिए ईमेल। बट टू बी लिस्ट का एग्जांपल क्या दे सकते हैं, दैट आई कैन बी माइंडफुल ऑफ अदर्स ऑल्सो, है ना। टू डू लिस्ट में हम देख सकते हैं कि मुझे अपने घर का काम करना है, आई हैव टू फिनिश माई हाउस वर्क, कुकिंग है, क्लीनिंग है, बहुत कुछ करना है। टू बी लिस्ट में हम क्या डाल सकते हैं, आई हैव टू डू माई इंटरनल वर्क ऑल्सो, मेरा इंटरनल वर्क भी होना चाहिए दिन का। टू डू लिस्ट में हम डाल सकते हैं कि आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से मिलना है मुझे, है ना, टाइम निकालना है, फ्रेंड्स से मिलूंगा मैं। टू बी लिस्ट में क्या होता है, हम डाल सकते हैं कि मुझे फ्रेंडली रहना है, मुझे फ्रेंडली रहना है। यानी कि हम टू डू लिस्ट और टू बी लिस्ट हम डिसाइड कर सकते हैं। और ये टू बी लिस्ट क्या है, ये वही प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर अब मैं देखूं ये सारे, अगर मैं इन पॉइंट्स को अभी हटाऊं यहाँ से, ठीक है, तो मैं बात करूं अगर एग्जाम्स टाइम्स, तो एग्जाम टाइम पे अगर हमारा माइंड क्या सोच रहा है कि सिलेबस कैसे कवर होगा, हाउ विल आई हाउ विल आई कवर द सिलेबस, सिलेबस कैसे कवर होगा। तो टू बी लिस्ट क्या होनी चाहिए हमारे टाइम पे, एक्चुअली इट्स नॉट ओनली अबाउट कवरिंग द सिलेबस, इट्स अबाउट डेवलपिंग एक्सपर्टीज। क्या मैं एक्सपर्टीज में सीख पा रहा हूँ कि मैं ज्यादा चीजों को कैसे कम समय में कवर करूं, क्या मैं ये सीख पा रहा हूँ। अगर आप इस चीज पे फोकस्ड हो ना, कि मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन मैं ये सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं एक्सपर्ट बन सकता हूँ चीजों को जल्दी कवर करने में, तो आप एग्जाम में नंबर लाओ ना लाओ, बट आप लाइफ का लेसन सीख जाओगे, है ना। एग्जाम्स टाइम में हम क्या दूसरा लेसन देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, आप लोगों ने, कई लोगों ने खुद ही मेरे को टाइप करके दिया चैट बॉक्स में कि प्रभु जी एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि हम सोचते हैं क्या कि विल डू टुमारो, दैट आई विल डू टुमारो, कल कर लेंगे, आज छुट्टी मिलेगी ना, कल कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्कूल वर्ल्ड व्यू के पर्सन हो, और अगर आपकी टू बी लिस्ट होगी या होनी चाहिए, तो आपको क्या सीखना चाहिए सिचुएशन में, आपका स्कूल वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए सिचुएशन में, आपका होना चाहिए क्या मैं डिटर्मिन्ड रह सकता हूँ, क्या मैं डिटर्मिन्ड रह सकता हूँ। ये मुझे फोकस करना है, ये क्वालिटीज डेवलप करने पे, एक्सपर्टीज है, डिटर्मिन्ड है। एग्जाम के टाइम पे आपका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि मैं एक्सपर्टीजनेस डिटर्मिनेशन के साथ क्या मैं पेशेंस रख पाता हूँ। एंड फोर्थ प्रिंसिपल एग्जाम टाइम के लिए स्पेशली, एम आई रेडी टू बी डिटैच्ड,
after I have done whatever I can, am I ready to be detached from lamentation कि मैं नहीं कर पाया, नहीं मैंने किया, गलतियां कर दी. If you can learn these principles in exams ना, कि मुझे ये सीखना है एग्जाम टाइम पे सिर्फ सिलेबस की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हम कर रहे हैं उसकी बात नहीं है. अगर वो हमारे कंट्रीब्यूशन का नहीं है तो वो हमारे लाइफ में क्या करेगा वैल्यू ऐड. आप पढ़ रहे हो मान लो पॉलिटिकल साइंस, बट अगर पॉलिटिकल साइंस आपकी लाइफ में काम नहीं आने वाली, जिससे आप वर्ल्ड को बेहतर बना पाओगे, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, तो क्या वो सिचुएशन आपको कुछ नहीं सिखा सकती? सिखा सकती है, सिखा सकती है. वो ये चारों चीजें सिखा सकती है जो हमने टू बी लिस्ट में लिखी. और अगर आपका फोकस इन चीजों पे भी रहेगा ना, स्टिल आपके पास एक गाइडिंग नॉर्थ स्टार होगा उस चीज को करने का, कि मैं ये तो सीख लूँ ना कम से कम. एक्सपर्टीजनेस कैसे डेवलप करना है, डिटर्मिन्ड रहना है, पेशेंस रखना है, डिटैच रहना. तो ये सारी चीजें पे अगर आपका फोकस होगा ना, तो आप एग्जाम टाइम पे भी सक्सेसफुल रहोगे. देन इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, देन इट्स अबाउट योर विनिंग द एटीट्यूड. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई जस्ट वांट टू नो. एंड इन द चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ आप लोग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, लेट मी रीड द चैट. सो किसने लिखा है? सो सर, एम्बिशंस आर नॉट नीडेड इन द लाइफ. शुभा ने पूछा है. शुभा, एम्बिशंस आर नॉट द गोल ऑफ लाइफ, अचीविंग द एम्बिशंस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. ये क्या मतलब है सर? एम्बिशंस आर नॉट द गोल ऑफ लाइफ? नो. A contribution through your ambition, a contribution to the world, to make the world a better place is the goal of life. Please understand this, everyone, not just Shubha. Please, everyone, understand this. A contribution to the world to make this world a better place is a good ambition. My ambition can be, to become the best chess player. Okay, good, very good, sir. But if my ambition cannot make the world a better place, cannot improve the lives of others, then it's really not an ambition, it's an hobby. It's a hobby. But if you can contribute something to your ambition, then that's an ambition. And what we can contribute, हम अपने ambition में क्या contribute कर सकते हैं? हम अपने ambition में ये qualities contribute कर सकते हैं. Ambition is made of qualities actually. Ambition is not made of things. Ambition is not about reaching a higher position in a ladder. Ambition is about making yourself capable so that you can reach anywhere. That capability, that qualities, that these principles, these are. Are you able to understand, everyone? Shubha, are you able to understand what we are discussing? मतलब आप समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? You're synchronizing with the thoughts. Yes, no, yes, no. Everyone, can you reply me in the chat? You can unmute also. Anyone you want to ask? Okay, okay, good. Thank you for the responses. Yes. Yeah, I think it's very relevant. That's Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is so that when we learn these principles, these are eternal principles. ये eternal principles हैं, ये change नहीं होते, ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं, ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं रहते. जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों की कहानी, आप लोगों के जीवन की कहानी भी मैं बताऊं अगर मैं, आपके जीवन की कहानी क्या थी कि प्रभु जी हमारा क्या होगा, हमें टेंथ में कहते थे कि टेंथ में अच्छे से पढ़ो, टेंथ में अच्छे बोर्ड में नंबर लेके आओ, टेंथ के मार्क्स आए हैं, अभी टेंथ का रिजल्ट आया था अभी रिसेंटली सीबीएसई का ना, तो टेंथ में लगता था कि टेंथ का बोर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes, Shubha, you have written. So ambitions with guiding principles could be a balanced path. Yeah, it's the only path, not a balanced path. Ambitions should be a contribution with these principles, है ना? Principles contribute. वर्ल्ड में कौन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं? जो प्रिंसिपल्स के साथ जीवन जीते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल पीपल भी है ना, इवन मेटेरियलिस्टिक, मतलब जो नॉर्मल कंट्रीब्यूटिंग पीपल है, लेट्स से एप्पल आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक ब्रांड है, एंड उसमें हम एक सक्सेसफुल पर्सन का नाम सुनते हैं, स्टीव जॉब्स. तो स्टीव जॉब्स इतने बड़े रिच, इतने ही बिकेम द वर्ल्ड फेमस पर्सन, है ना. एप्पल कंपनी के खोल दी इन्होंने इतनी बड़ी, है ना.
वर्ल्ड में कंप्यूटर्स हर जगह पहुंचा दिए और बेस्ट कंप्यूटर्स हर जगह पहुंचा दिए। तो ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? बिकॉज स्टीव जॉब्स हैड अ विजन। स्टीव जॉब्स never wanted to become the most famous person or the most richest person. Steve Jobs had a passion, and through his passion, he wanted to contribute to this world. He wanted the technology should reach to everyone, and he was passionate about that. And because he wanted to improve the life the others, वो चाहते थे कि लोगों की लाइफ बेटर हो, therefore he was favored, and therefore actually he had these principles in the mind. अगर आप कभी उनके टॉक सुनोगे ना, तो he always had that the life should be led with these principles actually. Those who are guided by the principles, their ambitions actually improve the lives of the others. And those who do not have principles in their life, or who do not have the idea of principles in their life, they are doing only a job, but they are not contributing to this world, and that doesn't make them peaceful, and therefore they are not peaceful, therefore stress is so much there. स्टूडेंट लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही है। जब तक हम एक स्टूडेंट होके सिर्फ और सिर्फ टॉप करने का सोचते हैं, एग्जाम क्रैक करने का सोचते हैं, तब तक हम चिंता में ही रहेंगे। चिंताम अपरिमेयाम प्रलयंताम उपाश्रित, प्रलय काल तक चिंता में रहेंगे। लेकिन कृष्णा क्या कहते हैं? कृष्णा कहते हैं कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स के साथ अपनी लाइफ लीड करते हैं, तो एग्जाम क्लियर करना तो बस एक क्या है, एक दरवाजा है, एक डोरवे। हमें अचीव तो ये प्रिंसिपल्स करने हैं, इन प्रिंसिपल्स के साथ जीना है। मान लो आप में से कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है जस्ट टू बिकम क्लियर द यूपीएससी एंड जस्ट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन, और बहुत अच्छा प्रेस्टीज है, फेमस जॉब है, सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योर्ड रहेगी मटेरियली, बट दैट विल नॉट सेटिस्फाई हिम इवन इफ ही क्लियर्स यूपीएससी। और नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एक डिप्रेशन तो रहता ही है। बट अगर कोई ये सोचता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, एंड मुझे ये क्वालिटीज लेके आनी है अपने अंदर जो कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होंगी, एंड वो उसको अपना गोल बना के यूपीएससी के एग्जाम देता है, एंड उसका अगर यूपीएससी हो गया तो उसके लिए दरवाजा खुल गया, और अगर उसका यूपीएससी नहीं हुआ तो कोई और भी दरवाजे देखेगा। एक दरवाजा नहीं होता पहुंचने के लिए, और भी दरवाजे होते हैं, क्योंकि हाँ, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वर्ल्ड को बेटर बनाना। तो यूपीएससी नहीं तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और तरीका जिससे वर्ल्ड को बेटर बनाया जा सके इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल ट्राई दैट। जस्ट लाइक these successful people like Bill Gates, Steve Jobs, they had this vision, we want to contribute to this world, and they became successful। ठीक है, थोड़े सा मैं ये चीज पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। तो एग्जाम टाइम पे आप लोग प्लीज फोकस करिएगा कि ये प्रिंसिपल्स आप लोग अपनी लाइफ में उतार पाए। ये प्रिंसिपल्स के साथ आप लोग ट्राई करें पढ़ने का, ये प्रिंसिपल्स अचीव करने हैं, राइट। डिटैच माई सेल्फ, या उसके लिए मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू लर्न दिस क्वालिटीज ऑफ डिटैचमेंट। अब ये प्रिंसिपल सिर्फ सोचने से नहीं आते फ्रेंड्स, जैसे है ना कि मैं सोचूंगा खाली कि पेशेंस 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 पेशेंस, आगे लिख दिया दीवार के आगे, पेशेंस पेशेंस, डिटैचमेंट डिटैचमेंट डिटैचमेंट, तो ये बोलने से नहीं आते खाली। ठीक है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, है ना। तो इसके लिए ही हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, वो प्रैक्टिस में बताऊंगा। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, ये टू बी लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स सी कौन है। यस, अमित प्रभु, कैन यू रीड दिस? प्लीज रीड दिस, अनम्यूट करके यू कैन रीड दिस। एबल टू हियर मी, अमित प्रभु? ओके, उज्जवल प्रभु, कैन यू रीड दिस? Yes, yes, Priya. ओके, यस अमित, गो अहेड अमित प्रभु। Sorry, sorry. कहाँ कहाँ तक प्रभु पढ़ा था? ये जो स्क्रीन पे है ना, इसे आप रीड कर सकते हैं। Okay, okay. Okay, प्रभु. People may acknowledge us for what we do,
but they invariably remember us for who we are. The things that can be counted don't always count, and the things that really count can't always be counted. Okay, thank you. Everyone, please take a look at this. What is written here? Just take a look at this and just think for a minute. Just think for a minute. People may acknowledge you for what you do in your life, but they will remember us for the person you are. That means they will remember the principles by which you have led your life. Therefore, these principles, which are oftenly neglected in the society, which appear like which should not be counted, actually these count the most. And the things which you can accumulate in life, which we count, कि कितना count hai, actually they don't count. It's opposite. So I'll not say that you should not have these goals and ambitions in your life. You should have, but the guiding north star should be these principles. Because people will remember you for the person you were. They will remember only this. No will remember कि आपके 10th के मार्क्स कितने थे, 12th के मार्क्स कितने थे, कॉलेज के मार्क्स कितने थे, सीजीपीए कितनी थी, जॉब सैलरी कितनी थी, कौन से पोजीशन पे पहुंच गए. And even they may remember this, but they will not give much more value to this. The more value we give to a person is for the person who we are, the qualities that we have developed. Therefore, it's very important, very important. Therefore, to make a to-do list is good in life, but it's better also along with a to-do list to have a to-be list also. To have a to-be list also in life. The principles which really count. Okay? Therefore, this meditation is recommended. Therefore, every day the time for meditation should be taken out. How to become detached from results? Because you get expectations. And by meditation, actually, what happens is when you have done your part, you have worked on those principles. आपने पढ़ाई की, आपने टाइम दिया अच्छे से, आपने सब कुछ जो प्रैक्टिस जो रिक्वायर्ड था वो किया, एक्सपर्टीजनेस डेवलप करने की ट्राई करी, आपने लेट मी राइट, आपने एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए ट्राई करी अपने सब्जेक्ट में, आपने डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करी, ठीक है, एंड आपने पेशेंस भी रखा. और अब ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद एंड में, नॉट इन द बिगिनिंग, रिमेंबर, एट द एंड you can develop detachment, then you are successful. And for that, every day one should take out the time for meditation. So this is a mantra meditation where we chant this mantra. You can chant this mantra for 7 minutes, 10 minutes. Every day you can do rounds, many rounds. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Sit back, chant this mantra, do this meditation. Always have their guiding North Star as these qualities, these principles. You will be a successful person. You'll be peaceful, you'll be powerful, and definitely you will have a beautiful mind. ठीक है, ये चीजें आज हमने डिस्कस करी हैं. ठीक है, तो again all the credit, all the teachings we have taken from the Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who has shared this knowledge of Bhagavad Gita throughout this whole world. And this was something from my part which I wanted to share with all of you from the Hira side, Team Hira. I thank you, all of you, for participating, and I look eagerly if you have some questions, if you want to share your thoughts, learnings from today's session, or what you learned, what you liked. ठीक है, तो chat box में please मैं screen share off करता हूँ, और I want all of you to write actually कि आप लोगों ने आज